Assalamu alaikum students, welcome to the video. Today we are going to talk about and discuss about the chapter 1 of the science, that is crop production and management. So let us see what are the contents in this PPT, that is introduction and basic practice of crop production. So the first, so why we need crop production क्यों करना चाहिए? So first of all living organisms require food. मतलब सब living organisms को food की ज़रूरत होती है. That is essential requirement for the living organism is food. Crop production is a branch of agriculture that deals with growing crops for use as food and fiber. So what is a crop production? Crop production is a branch of agriculture that deals with growing crops for use as food and fiber. फूड और फाइबर के लिए हमको क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ता है. जो भी हम क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी हम फूड जो खाते हैं उसको प्रोड्यूस करना. उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा. और क्रॉप प्रोडक्शन क्यों करना चाहिए? फूड और फाइबर के लिए. क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूड्स ग्रेन, कॉटन, टोबैको, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड प्लांट्स. सो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूड्स ग्रेन्स मतलब दाना, like गेहूँ, चावल, that is all comes under the grains. And cotton, whatever the cotton like जो भी हम लोग यूज़ करते हैं हत्ती, उसको सब कॉटन बोलते हैं. एंड टोबैको, whatever the tobacco is there in, that is also comes under the crop production. And fruits, vegetables, nuts and plants, fruits like banana या फिर apples, grapes, that also comes under crop production. Vegetables that we eat also comes under crop production. Nuts like all the dry fruits, that is also comes under crop production. And plants like plants that we use to decorate in the house, that is also comes under the crop production. So next, how we produce crop. So when plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called as crop. So what is a crop? When plant of the same kind, मतलब same kind of crops, एक ही तरह के दाने या फिर crops को large area में अगर produce कर रहे हैं तो उसको crop बोलते हैं. Crops can be classified on the basis of following seasons. So first one is kharif crops, the crops which are sown in the rainy season and are called as kharif crops. Rabi crops, that is the crops grown in the winter season, is called as rabi crop. So kharif crop को कब कौन से सीज़न में करते हैं? रेनी सीज़न में. और राबी क्रॉप्स को विंटर सीज़न में प्रोड्यूस करते हैं. सो क्रॉप्स आर classified on the basis of seasons. So according to the season, that is rainy season and winter season. रेनी सीजन में जो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसको खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं और विंटर सीजन में जो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसको राबी क्रॉप्स बोलते हैं. So basic practice of crop production. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. मतलब क्रॉप्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं. लाइक दे आर अडॉप्टेड फ्रॉम द एजेस. मतलब पहले के ज़माने से अभी के ज़माने में बहुत डिफरेंस है. लाइक इन द ओल्ड एज देर वेर नो टेक्नोलॉजीज लाइक ट्रैक्टर्स एंड ऑल. दे यूज टू डू ऑल बाय देयर हैंड्स ओनली. सो तब टेक्नोलॉजी नहीं था तो वो क्या करते थे, हैंड के यूज़ से ही सिर्फ क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे. बस हैंड या फिर जो भी टूल्स वो बनाते थे वो सिर्फ अब खुद ही बनाते थे. टेक्नोलॉजी का कुछ हेल्प नहीं. बट नाउ दे आर डेवलप्ड, सो दे आर अडॉप्टिंग एवरी according to the crops and according to the technology. So they use the different methods. Period of time में methods are differentiated. मतलब पहले के टाइम में जो मेथड यूज़ करते हैं वो आज नहीं है, डेवलप होते गया है. फार्मर्स आर डेवलपिंग देयर मेथड्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. These activities or tasks are referred to as agricultural practices, which are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. There are 7 practices, so we will look into by one. Each one now we are going to look into one by one. So let us say first one is preparation of soil. How we prepare soil.
द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। मतलब सॉइल को हम लोग को अगर बारिश नहीं गिराए तो सॉइल कैसा रहता है, आप लोग खेत फार्म्स यू हैव सीन दैट दे आर ऑल रफ, मतलब वो बहुत हार्ड हुए रहता है। देन वी हैव टू मेक इट लेसर लूज करना पड़ता है, मतलब उनको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है बिकॉज वी हैव टू डू फार्मिंग ऑन दैट। हम हार्ड जो भी अभी अगर गर्मी के सीज़न मतलब आफ्टर द समर सीजन इफ़ यू सी एंड गो टू द फार्म्स यू कैन सी दैट वो कितना हार्ड हुआ रहता है। देयर विल बी नो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द फार्म्स और ऑल, बस वो टूटा हुआ जैसा लगता है, फार्म सब बहुत हार्ड हुआ रहता है। सो अगर हमको फार्मिंग करना है तो वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल। दैट हाउ वी डू दैट, वी विल लूज द सॉइल और टर्न द सॉइल अपसाइड डाउन, मतलब उसको हम लोग सॉफ्ट करना है तो वाटर ऐड करके उसको लूज कर सकते हैं, फिर उसको अपसाइड डाउन मिक्स करके उसको थोड़ा लूज कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। हाउ वी डू दैट, दैट इज कॉल्ड एज प्लगिंग। सो उसको प्लगिंग बोलते हैं। सो हाउ वी डू दैट, प्लग इट, सो वी यूज प्लग टू प्लगिंग, मतलब प्लग यूज़ करके हम उसको हल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको लूज करते हैं। सो हाउ वी आप टर्न कैसे करते हैं सॉइल को, मतलब मिक्स करना होता है ना, सो वी कैन नॉट डू इट बाय हैंड, सो वी हैव टू यूज द टूल दैट इज कॉल्ड एज प्लग। सो व्हाट इज अ प्लग, इट इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, मतलब उसको निकालने के लिए, एंड एडिंग द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, मतलब फर्टिलाइजर मतलब दैट इज लाइक गोबर जो होता है वो भी एक फर्टिलाइजर है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिससे मदद मिले क्रॉप्स को प्रोड्यूस होने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, मतलब जो भी जहरीले पौधे या फिर अनचाहे पौधे रहते हैं, लाइक जो भी कीड़े या फिर पौधे जो भी ख़राब कर सकते हैं क्रॉप को, उसको निकालना। एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल, मतलब उसको सॉफ्ट बनाना, दैट इज यूज्ड बाय प्लग। सो नेक्स्ट टूल इज दैट इज हो, मतलब आप लोग ये देखा होगा बहुत आपके आसपास पे बहुत ऐसे ही टूल्स रहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ द वीड्स, मतलब जो भी वीड्स का मतलब होता है अनचाहे पौधे, मतलब वॉट एवर द स्मॉल जो भी पौधे रहते हैं स्मॉल, वो जो क्रॉप है उसको ख़राब करने की क्षमता रखते हैं, मतलब उसको ख़राब करने का हो सकता है, उससे ख़राब हो सकते हैं जो भी जहरीले पौधे रहते हैं उससे। That is, we have to remove it. How we remove it? We remove it using the hoe. The next tool is that is cultivator. Cultivator nowadays you can see in the PPT or the picture that is a tractor, and look at behind what is there. There is a cultivator. You can see that it is going inside the soil and taking the soil up and mixing it. मतलब उसको ऊपर ला के फिर नीचे टर्न कर रहा है सॉइल को, उसको टर्न कर रहा है, उसको लूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लगिंग। टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल, लूजिंग अप द सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज प्लगिंग। हाउ वी डू इट, फर्स्ट वी हैव सीन दैट देयर इज अ टूल कॉल्ड प्लग एंड देयर इज अ टूल कॉल्ड हो। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ कल्टिवेटर। सो ट्रैक्टर इज नॉट द कल्टिवेटर, ट्रैक्टर के जो पीछे है उसको कल्टिवेटर। Next is after the preparation of soil we go for sowing. How we sow? Before sowing, selection of good quality seeds are more important. That means अच्छे क्वालिटी के जो भी बीज रहते हैं, that is important. Seeds are very important for the crop. However, as we go for good quality of the seed, we get good quality of crops. So in sowing, little if any soil is placed over the seeds. More precisely, seeds can be generally sown into the soil by maintaining a planting depth of about 2-3 times size of the seed. So how we have to sow, मतलब सीड्स को लिया है तो सीड्स को डायरेक्ट हम लोग नहीं डाल सकते सॉइल के अंदर, मतलब कहीं भी नहीं डाल सकते। वी हैव टू मेक इट प्रॉपर, लाइक द मेथड इज वी हैव टू पुट इट इनसाइड द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड 3 times और 2 times ऑफ डेप्थ। अगर 1 इंच का अगर सीड है तो उसको 3 इंच तक नीचे अंडरग्राउंड में डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वरना पानी नहीं पहुंचेगा या फिर माटी भी उसका कुछ भी हेल्प नहीं करेगी, दैट इज़ नॉट गुड। सो हाउ वी सो, मोर प्रिसाइजली सीड्स कैन बी जनरली सोन इनटू द सॉइल बाय मेंटेनिंग अ प्लांटिंग डेप्थ ऑफ 2-3 times साइज ऑफ द सीड, मतलब जो भी सीड का साइज होता है उससे 2-3 times नीचे उतना ही डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नीचे नहीं डालना है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोन। Adding manure and fertilizers. The substance which are added to the soils in the form
of nutrients for the healthy growth of plants are called as manure and fertilizers. So what are manure and fertilizers? Whatever things we put into the soil or the crops that can help the health of the crops. Like if we add manure and fertilizer to the soil, that will increase the nutrients inside the soil, and it will help in the growth of the plants. That is called as that is the helping in the increasing of the healthy growth of the plants. That is the use of the manure and fertilizers. So fourth one is irrigation. What is irrigation? Water is important for proper growth and development of the seed of the plant. So हमको पता है कि सीड अगर ग्रोथ होना है तो प्लांट करना होगा, उसको प्लांट करने के बाद उसको मेंटेन भी करना होता है. दैट इज वी हैव टू मेंटेन द सीड इनसाइड द सॉइल, राइट? सो वी हैव टू गिव प्रॉपर वाटर टू इट, वी हैव टू ऐड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर टू इट सो इट कैन ग्रो इनटू अ हेल्थी प्लांट. सो water is more important for the growth of development of seeds. The supply of water to crops at different intervals is called as irrigation. So you can see that in the picture. What is irrigation? You can see, आप लोगों ने commonly देखा होगा खेत में या फिर farms में, that there will be a pipelines around every farm. बीच में पाइपलाइन होगी और उसके ऊपर एक स्प्रिंकलर होगा जो कभी कभी वहाँ से पानी एक टाइम टू टाइम इससे पानी आता होगा फार्म पे. लाइक आप लोगों ने पार्क्स में भी देखा होगा कि स्प्रिंकलर होता है और वो ग्रास को भिगा के रखता है हमेशा. दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन. सो फॉर द फार्मर्स, दे टाइम टू टाइम आके वो हर जगह तो पानी नहीं डाल सकते ना. सो इरिगेशन सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग वाटर टू ऑल द फार्म, ऑल एरिया ऑफ द फार्म. सो प्रोटेक्शन from weeds. Fifth one is protection from weeds, that is undesirable plants that may grow naturally along with the crop is called as weeds. Undesirable plants मतलब क्रॉप अलग रहता है. अगर आप लोग वहाँ पे चावल की सीड्स डाल रहे हैं और चावल के पौधे ग्रो हो रहे हैं और उसके साथ कुछ अलग पॉइजनस प्लांट्स भी ग्रो हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वीड्स. दे आर कॉल्ड एज वीड्स. दैट विल वो क्या करते हैं, ख़राब करते हैं. अगर चावल का पौधा डाला है और चावल के पौधे के साथ अगर पॉइजनस प्लांट्स भी हो रहे हैं तो उसको ख़राब कर देगा ना. सो दैट इज कॉल्ड एज वीड्स. सो वी हैव टू रिमूव इट. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड एज वीडिंग. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सर्टन केमिकल्स कॉल्ड एज वीडिसाइड्स. सो वी हैव टू रिमूव इट. हम रिमूव कर सकते हैं उसको. दैट इज कॉल्ड एज वीडिंग एंड वी कैन कंट्रोल इट. मतलब हम हमेशा तो ध्यान नहीं रख सकते ना कि weeds है कि plants खराब हो रहे हैं. So what we have to do, we can add chemicals to it that can prevent the growth of the weeds. That is called as weedicide. Sixth one is harvest. So whatever we have done till now, that is the production of crop, मतलब growth of the plant. So whatever we have done, that will help in the growth of the plant. So what we will do after the growth of the plant, that is we have to cut the crop. So कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्ट. मतलब अभी तक जो हम लोगों ने ग्रोथ के लिए हेल्प किया, हम लोगों ने सो किया, हम लोगों ने सॉइल प्रिपेयर किया और फिर उसके अंदर सीड डाला, फिर हम लोगों ने उसको वाटर डाला, इरिगेशन किया, फिर उसमें फर्टिलाइजर डाला. सो वट एवर वी हैव डन, वी हैव हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो दिस harvesting means after the growth of the plant we have to cut it. So the cutting of the crop after it is mature is called as harvesting. So harvesting is either done manually by sickle or a by machine called as harvester. You can see that sickle left side में जो picture है वो sickle है. So harvester is on the right side. There is a machine called as harvester. You can see that. And harvesting activities include cutting, stacking, handling, threshing, cleaning and hauling. So harvesting activities are cutting, stacking, कट करना है और उसको एक जगह जमा करना है और उसको हैंडल करना है और उसको थ्रेशिंग मतलब उससे जो भी अनचाहे पौधे या फिर जो भी ना चाहिए, सिर्फ हमको क्रॉप चाहिए, उसको थ्रेश करना है, क्लीन करना है, हॉल करना है. दैट्स ऑल हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. Seventh one is storage. So whatever we have done, we have grown the plant, we have grown the crops and then we have cut the plant. And कट करने के बाद क्या करना होता है, उसको स्टोर करना पड़ता है. दैट इज इन द स्टोरेज. वी स्टोर द ऑल द क्रॉप्स इनटू द स्टोरेज. वट एवर वी हैव प्रोड्यूस्ड वी विल स्टोर इनटू द स्टोरेज. Storing grains in a proper storage place under the appropriate moisture
and temperature to prevent it from the attack of insects and to preserve it for later use is called as storage of a grain. So whatever we have produced the crop, that we have to store into a storage. स्टोरेज कैसा होना चाहिए? स्टोरेज का मॉइस्चर मतलब उसमें जो नमी होती है एंड टेम्परेचर must be suitable for the crops and unsuitable for the insects. That will help in the storing of the crops. Thank you. So this